ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ ایل جی کے مشیر بصیر احمد خان نے وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج کے تحت محکمہ سیاحت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا لیا جائزہ۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح پہنچی 92% تک۔ جموں کشمیر میں آج 478 نئے مثبت معاملوں کی ہوئی تصدیق۔ کپواڑہ کے کلاروس اور بڈ نمبل جنگلات میں لگی آگ سے دیودار کے درختوں کو بھاری نقصان۔ ٹنگ مرگ علاقے میں آگ کی واردات میں 2 رہائشی مکان مکمل طور خاکستر، اور امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج ایک جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج کے تحت محکمہ سیاحت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ SKICC میں منعقدہ اس میٹنگ میں مشیر موصوف نے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ ان پروجیکٹوں کو سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط کے تحت مقررہ مدت میں مکمل کریں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان پروجیکٹوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ JKEDI پامپور میں آج کاروباری افراد کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تقریب پر مشیر موصوف نے JKEDI سے استفادہ کرنے والے 141 افراد میں 11 کروڑ روپے رقومات کی چیکیں اور سینکشن لیٹرز تقسیم کیے۔ وہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر JKEDI نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح تقریباً 92% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 58,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 76 لاکھ ہو گئی ہے۔ ملک میں فی الحال زیر علاج مریضوں کی تعداد 5,41,000 ہے۔ دریں اثنا پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38,310 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 82 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران 490 اموات کی خبر ملی ہے۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 مریضوں کی صحتیابی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج مختلف اسپتالوں سے 578 مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد گھروں کو روانہ کیا گیا۔ اس دوران آج 478 نئے مثبت معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 195 جموں صوبے سے جبکہ 283 کشمیر ڈویژن سے ہیں۔ دریں اثنا پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 12 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جن میں سے 4 کا تعلق جموں ڈویژن جبکہ 8 کا تعلق کشمیر وادی سے ہے۔ اس طرح سے اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 96,188 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی کل تعداد 1,502 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کووڈ-19 کے بارے میں احتیاط سے متعلق یہ پیغام۔ کووڈ-19 ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مؤثر علاج اس وقت میسر ہے، اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں، اس لیے اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان تدابیر کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں باضابطگی سے وقتاً فوقتاً ہاتھ دھونے ہوں گے اور کوشش کرنی ہے کہ بلا ضروری ہم باہر نہ نکلیں۔ اب اگر باہر ہم نکلیں تو ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے اور کوشش کرنی ہے کہ 2 میٹر کا فاصلہ قائم رہے۔ اگر کسی بھی شخص میں کوئی علامات، کوئی سمٹمز نظر آئیں تو وہ خود ہی سیلف آئسولیٹ ہو اور ڈاکٹر کو رجوع کرے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ یہ وشال ہے نا، اس کا سب پراپر چلتا ہے۔ کل اس کے بینک اکاؤنٹ میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے، پتا ہے؟ اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، دیکھنا۔ ٹینشن کیوں؟ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے ترنت بینک کو انفارم کر دیا۔ RBI کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے۔ 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جتنا لیٹ کرو گے اتنا زیادہ نقصان۔ اور سن، سب چلتا نہیں ہے، پراپر چلانا پڑتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ سری نگر کے ہوائی اڈے پر آج فوج نے پرمویر چکر سے نوازے گئے میجر سومناتھ شرما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر شرما نے 1947 میں آج ہی کے دن پاکستانی فوجیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان نچھاور کی تھی۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے آج اقبال پورہ کھیرتی میں ایک گرام سبھا منعقد کی، جس میں BDC چیئرپرسن، پنچوں، سرپنچوں اور اوقاف کمیٹی کے ساتھ ساتھ سماج کے معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے بجلی، پانی، سڑک اور طبی سہولیات کے معاملات کو ابھارا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمیشن اننت ناگ کے علاوہ کئی عہدیدار موجود تھے۔
नाज़िम इत्तला डॉक्टर सहरिश असगर ने आज एक निजी स्कूल में एक तकरीब के दौरान स्कूल की एक तालिबा सादिया निसार शाह की तरफ से तहरीर की गई किताब द बटरफ्लाई ऑफ पैराडाइज की रस्मी रूनमाई अंजाम दी। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफा ने कहा कि आज के दौर में लड़कियां अपनी पहचान बनाने की पूरी सलाहियत रखती हैं। उन्होंने तालिबा की सताइश करते हुए कहा कि तालिबा ने अपनी सलाहियत और हुनर को मुस्बत अंदाज में निखारा है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा व तालिबात में एतमाद बढ़ाएं ताकि वो अपने हुनर को पहचान दे सकें। पीपल्स अलायंस ने नए अराजी कानून से मुत्तलिक सरकारी तर्जुमान के कल दिए गए बयान को मुस्तरद करते हुए इसी हक़ाइक़ को मस्क करके झूठ के बल पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। एक बयान में अलायंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अराजी की मिल्कियत से मुत्तलिक जो कवानीन अब तक राइज थे वो पूरे बड़ी सगीर में सबसे ज़्यादा तरक्की पसंदाना, अवाम दोस्त और किसान दोस्त थे। बयान में इल्ज़ाम लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर के बुनियादी अराजी कवानीन को मनसूख करके इनमें भारी तरमीम का हकीकी मकसद जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना और यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदों को बेइख्तियार बनाना है। सरकार की तरफ से नए अराजी कवानीन लागू किए जाने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि इस तरह की कवानीन से जम्मू कश्मीर की अराजी गैर रियासती लोगों को मुंतकिल की जा सकती है, जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। JKPCC ने इन कवानीन को नाकाबिल कबूल करार दिया और साबिक जम्मू कश्मीर रियासत के अराजी कवानीन को जल्द बहाल किए जाने की मांग की है। साबिक मरकजी वज़ीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने हाल ही में सरकार की तरफ से अराजी कवानीन में तब्दीली लाने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस तरह का एजेंडा चलाने से जम्मू कश्मीर के लोगों में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकूमत की तरफ से नए अराजी कवानीन तश्कील दिए जाने को जम्मू कश्मीर के लिए तबाहकुन सूरत-ए-हाल से ताबीर किया है। उन्होंने इस कदम को एक संगीन साजिश करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में महाराजा के वक्त बनाए गए अराजी कवानीन को वापस बहाल किया जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग से वाबस्ता पार्टी कारकुनों ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती की हिरासत के बाद यह इस तरह की पहली मीटिंग थी। कुपवाड़ा के बडनंबल जंगलात में पिछले कई दिनों से लगी आग जारी है, जिसकी वजह से देवदार के काफ़ी दरख्त जलकर राख हुए हैं। इधर कलारूस लोलाब में भी आग की वजह से जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, तहां वहां आग पर काबू पा लिया गया है। इलाके के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे जंगलात के चंद मुलाजमीन इस वारदात में मुलव्विस हैं। लोगों का कहना है कि अहलकार जंगल स्मगलरों के लिए राह हमवार कर रहे हैं। टंगमर्ग के मादम इलाके में आग के एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकानात पूरी तरह से खाकिस्तर हो गए। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस इलाके में एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन एक नज़दीकी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस और मकामी लोगों ने अगरचे आग को बुझाने की कोशिश की, ताहम सड़क की खस्ताहाली की वजह से फायर सर्विस की गाड़ियां मज़कूरा जगह तक काफ़ी देर बाद पहुंची, जिस वजह से दोनों मकानात खाकिस्तर हो गए। कोविड-19 वबा ने जहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, वहीं ऐसे भी अफराद इन हालात में सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ इस वबा का मुकाबला किया बल्कि इस वक्त को एक खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया। इस तरह की एक मिसाल जलालुद्दीन डार नामी एक शख्स ने कायम की है। जलालुद्दीन डार MA पॉलिटिकल साइंस है और उन्होंने अपनी बंजर ज़मीन को एक खूबसूरत बाग में तब्दील किया, जो लोगों के लिए तफरी का मकाम बन गया। इसके साथ साथ इस बाग में मज़कूर शख्स ने नदरू की फसल उगाई है, जिससे वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा कर रहा है बल्कि दूसरे नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए एक तरगीब पेश की है। मार्कीपोरा पट्टन का रहने वाला शख्स अपने इलाके को एक पहचान देने में कामयाब हुआ है। यह पॉलिटिकल साइंस में ये जो ज़मीन है यहाँ पे हमारी, इसमें ज़्यादातर साल भर पानी ही रहता था, तो फिर हमने इसमें मछलियाँ डालनी शुरू कर दी। तो उसके बाद उसका एक और आइडिया आ गया है, जिसमें उसने कहा कि मछलियों के साथ साथ हम इसमें नादरू भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें जो कमाई हो जाएगी। तो फिर इसमें हमने नादरू भी लगाया, तो मज़दूर भी इसमें कुछ पैसे कमाते हैं, हमारा भी गुजारा होता है, अच्छे से गुजारा होता है इसमें। तो अब जो मेरा भी रोज़गार है इसी से चल रहा है। तो बाप की आइडिया की वजह से हमने ये जो यहाँ पे फार्म लगाया है, शुक्र खुदा का, इसमें अच्छा गुजारा होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो अब गुजारिश यही है लड़कों से, कोई काम करे, कोई अच्छा आइडिया दिमाग में लाए तो कुछ कमाए, ताकि घर वाले भी।
जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शिया ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आज एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान एक रिश्ता कायम करना था। इस प्रोग्राम के हवाले से बकाए बाहम के बारे में जानकारी फराहम की गई। अमेरिका में नए सदर के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने कल वोटरों को अपनी ओर रागिब करने के लिए आखिरी कोशिशें की। तकरीबन 9 करोड़ 20 लाख अमरीकी शहरी पहले ही वोट डाल चुके हैं। बिहार असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में आज पोलिंग मुकम्मल हुई। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा वोटर 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आला चुनाव अफसर HR श्रीनिवास ने बताया कि नक्सली सरगर्मियों से मुतासरा 8 हलकों में पोलिंग दिन के 4 बजे तक जारी रही। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल के दौरान कोविड ज़ाबितों पर अमल करने के अहकामात जारी किए थे। भारतीय बहरिया का जहाज ऐरावत मिशन सागर 2 के हिस्से के तौर पर कल पोर्ट सूडान पहुंचा। भारतीय सरकार कुदरती आफात और कोविड-19 आलमी वबा से निपटने के लिए दोस्त मुल्कों की मदद कर रहा है और इस मकसद के लिए INS ऐरावत सूडान के लोगों के लिए 100 टन खुर्दनी अशिया लेकर गया है। पहला मिशन सागर मई-जून 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मडगास्कर और कोमोरोस को खुर्दनी अशिया और दवाएं फराहम किए थे। वुलर प्रीमियर लीग के तहत शेखुल आलम क्रिकेट ग्राउंड सोपोर में परवेज रसूल और आबिद नबी की क़यादत में बिजबिहाड़ा स्पोर्ट्स और कश्मीर सुजेट स्ट्राइकर्स के माबैन फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में लगभग वादी की 64 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में वादी के मशहूर क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान बांडीपोरा के नादिहल सेकेंडरी स्कूल में आज BCC और दाचीगाम की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2020 टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जिसमें BCC बांडीपोरा ने जीत दर्ज की। इस मौके पर खेल शायकीन की अच्छी खासी तादाद भी शामिल थे। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।